Bismillahirrahmanirrahim. Today we discuss the symmetry point group. Symmetry point group. Molecules can be classified into high symmetry and low symmetry molecules on the basis of symmetry elements present in those molecules. Molecules can be a high symmetry molecules or low symmetry molecules. On the basis of symmetry elements present in molecules. So all symmetry operations present in a molecule form a group. All symmetry operations are elements present in a molecule. Form a group. That group is called point group. Symmetry elements and symmetry operations present in a molecule, they form a group, and that group is called point group. So all these symmetry elements intersect through a fixed point. All symmetry elements are operations present in a molecule intersect at a common point. And this point remain fixed during all operations. And this point remain fixed during all operations. So therefore this is called point group. And all symmetry elements, symmetry operation form a group. That group is called point group. Why it is called point group? Because all symmetry elements present in a molecule intersect at a common point, and this common point remain fixed during all symmetry operations. So therefore this is called point group. So in mathematics, a group consists of set of members. A group consists of set of members, and this set of members obeys certain rules. Then if these members obey rules, then it is called a group. अगर rules को follow नहीं करते तो फिर वो group नहीं है. यानी group किसी ग्रुप में जितने भी मेंबर्स हैं या एलिमेंट्स हैं, वो ग्रुप कब बनाएगा? जब कुछ रूल्स हैं, 5 रूल्स हैं ग्रुप के, अगर वो रूल्स ओबे करते हैं, then this is a group. So the group in mathematics consists of set of members. These members obey certain rules. Which obey rules. अब पॉइंट ग्रुप में क्या है? पॉइंट ग्रुप इट कंसिस्ट ऑफ मेंबर्स, और मेंबर्स इसके क्या है? वो सिमेट्री एलिमेंट्स हैं.
consist of symmetry elements as members. So therefore these symmetry elements also follow some rules. अगर वो rules follow करते हैं फिर ये point group है. अगर rules follow नहीं करते then this is not a point group. So therefore these symmetry elements also follow rules, obey rules. So these members elements or operations obey rules. Therefore it is point group. अगर वो रूल्स फॉलो करते हैं तो ये पॉइंट ग्रुप है. अगर रूल्स फॉलो नहीं करते तो फिर ये ग्रुप नहीं होगा. यानी इस समरी क्या है इस डिस्कशन की कि किसी भी एलिमेंट्स में जितने भी सिमेट्री किसी भी मॉलिक्यूल में जितने भी सिमेट्री एलिमेंट्स या सिमेट्री ऑपरेशन है ये सारे सिमेट्री एलिमेंट्स और सिमेट्री ऑपरेशन एक ग्रुप बनाते हैं. इस ग्रुप को कहते हैं पॉइंट ग्रुप. पॉइंट ग्रुप क्यों कहते हैं? क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर मॉलिक्यूल में एक पॉइंट है और ये पॉइंट तमाम सिमेट्री ऑपरेशन के दरमियान कॉमन पॉइंट है और ये दिस रिमेन फिक्स्ड ड्यूरिंग ऑल ऑपरेशंस. सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड पॉइंट ग्रुप. अब अगर ग्रुप है तो मैथमेटिक्स में ग्रुप होने के लिए कुछ शराइत है, कुछ रूल्स हैं. तो इस तरह पॉइंट ग्रुप के लिए भी कुछ रूल्स हैं. वही मैथमेटिक्स वाले रूल्स हैं. वो रूल्स फॉलो होंगे तब ही ये ग्रुप होगा. अगर नहीं है तो फिर वो ग्रुप नहीं होगा. वो रूल्स क्या है? रूल्स नंबर 1, two elements of group combine and to give third element of the group. Two element of group combine and give a third element of the group. Third element of the group. For example, if A and B, these are elements, are member of the group, then A and B combined and give C. So C is also a member or element. So rule number first क्या है? Two elements of a group combine and give third element of the group. तो ये कंडीशन. तो ये लास्ट टाइम हमने मल्टीप्लिकेशन टेबल डिस्कस किया था. इसमें से दो सिमेट्री एलिमेंट्स को कंबाइन कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट वो भी सिमेट्री एलिमेंट्स था. तो वो मल्टीप्लिकेशन टेबल ये रूल्स फॉलो करता है. वो हमें ये बताता है कि टू एलिमेंट्स कंबाइंड एंड गिव अ थर्ड एलिमेंट. वो सारा मल्टीप्लिकेशन टेबल ही इसी के बेस पर था. Rule number 2, an element combined with itself to form another element of the group. An element of the group combine with itself and gives another element. Of the group. For example, A है एक एलिमेंट से. So A combines with itself A and it gives B. So this B is also a symmetry element. इसका थर्ड रूल ये पर हमने एग्जांपल के साथ डिस्कस करना है one by one. Every group consists of one element which commutes with all elements. Every group
consist of one element which commute with all elements and leave them unchanged. Every group consists of one element, यानी ग्रुप में एक एलिमेंट ऐसा होगा जो हर सिमेट्री एलिमेंट के साथ ये कंबाइन होगा। ग्रुप में एक मेंबर ऐसा होगा जो हर मेंबर के साथ ये कंबाइन होगा और इसका रिजल्ट अनचेंज होगा। इन केस ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स के हैं, वो आइडेंटिटी है। फॉर एग्जांपल ए है combines with E, so this E combines commute function का क्या मतलब, AE और EA, this is called commute property and remain unchanged A। इस तरह BE और EB is B। So ये E एक ऐसा एलिमेंट है जो हर सिमेट्री एलिमेंट के साथ ही कंबाइन हो जाता है, कम्यूट करता है और इसका रिजल्ट वो अनचेंज होगा। नंबर 4, every element of the group obeys associative law of combinations। Every element of the group obeys associative law of combinations। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 3 एलिमेंट्स है, उसमें ए बी सी है, तो ए बी एंड सी will be equal to A and B C। This is called associative law and this will remain the same। Every element of the group obeys the associative law of combinations। And fifth one is point number 5, each element of the group has an inverse or reciprocal। Each element of the group has an inverse, or reciprocal। This reciprocal is also an element, which is also an element or a member of the group। This element, the element and in inverse combines and give the identity। Element and its inverse combine and give identity। फॉर एग्जाम्पल ए है तो इस ए का एक इनवर्स या रेसिप्रोकल है -1। जब दोनों कंबाइन होते हैं तो इससे आइडेंटिटी। इस तरह बी है तो बी का इनवर्स -b है और ये कंबाइन होकर ये ई दे देता है। इस तरह फॉर एग्जाम्पल C2 है और C2 का इनवर्स क्या होगा, C2 नेगेटिव, दूसरी डायरेक्शन में प्लस या नेगेटिव। C2 है प्लस क्लॉकवाइज है, इस तरह C2 इसका नेगेटिव इनवर्स एंटी क्लॉकवाइज होगा। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो इसका रिजल्ट होगा आइडेंटिटी। सो दीज आर 5 रूल्स। अब इन 5 रूल्स को हमने
देखना है कि कोई किसी सिमेट्री एलिमेंट्स के किसी मॉलिक्यूल्स के जो सिमेट्री एलिमेंट्स है वो इन 5 रूल्स को ओबे करते हैं या नहीं। वाटर मॉलिक्यूल आपको असाइनमेंट के तौर पर दिया था, तो उसी के साथ हम इन रूल्स को डिस्कस करते हैं। हमने 5 रूल्स डिस्कस कर दिए हैं। पहला रूल क्या था कि टू एलिमेंट्स कंबाइन। जब पहले हम वाटर मॉलिक्यूल्स क्या है, वाटर H2O, इसमें सिमेट्री एलिमेंट्स क्या क्या है, एक C2 है, एक सिग्मा V1 है। ये कौन सा है, फ्रेमवर्क ऑफ द मॉलिक्यूल एक्स वाई प्लेन है। और दूसरा सिग्मा V2 है, ये कौन सा है, वाई जेड प्लेन है। और आइडेंटिटी है। ये 4 सिमेट्री एलिमेंट्स है। तो हम ये कहते हैं कि ये 4 सिमेट्री एलिमेंट्स दे फॉर्म अ ग्रुप, दैट ग्रुप इज कॉल्ड पॉइंट ग्रुप। अब उसका नाम क्या होगा उसकी तरफ हम बाद में जाएंगे, पहले इन रूल्स को डिस्कस करते हैं कि ये रूल्स ये ओबे करते हैं या नहीं करते। तो इसमें पहला रूल क्या था कि 2 सिमेट्री एलिमेंट्स कंबाइंड करते हो जाते हैं और उससे रिजल्टेंट वो थर्ड सिमेट्री एलिमेंट्स होगा, यानी ए और बी इट गिव्स सी। ये पहला रूल था। 2 सिमेट्री एलिमेंट्स कंबाइंड एंड गिव थर्ड। तब इसमें से हम 2 को कंबाइन करते हैं और फिर उसका रिजल्ट देखते हैं कि वो, यानी पहले हम ये देखते हैं कि सिग्मा 2 और सिग्मा V1 को देख लेते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, वो सिमेट्री एलिमेंट है या नहीं है। तो अगर हम वाटर मॉलिक्यूल देख लेते हैं, ये हाइड्रोजन 1 है, ये हाइड्रोजन 2 है। पहले अगर हम इस पर C2 अप्लाई कर लेते हैं, C2, तो C2 से क्या हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ये फ्रंट पर हम ये डॉट लगा लेते हैं, फ्रंट और बैक को सिर्फ देखने के लिए। जब इसको हम C2 अप्लाई करेंगे तो 2 रोटेट हो जाएगा ना, 2 इस साइड पर और 1 इस दूसरी साइड पर, और फ्रंट साइड बैक साइड में चला जाएगा क्योंकि रोटेट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 1, और वो जो डॉट था फ्रंट पर वो डॉट अब बैक साइड पे चला गया, अब इस पे डॉट नहीं है। फिर उसके बाद हम सिग्मा V1 अप्लाई करते हैं। सिग्मा V1 कौन सा है, ये बोर्ड वाला प्लेन है। जब बोर्ड वाले प्लेन से अप्लाई करेंगे सिग्मा V1, तो ये 1 और 2 अपनी जगह पर रहेंगे। सिर्फ क्या हो जाएगा कि इसका फ्रंट, जो मॉलिक्यूल का फ्रंट है या जो राइट साइड है, वो इसके इमेज में बैक साइड हो जाएगा और जो बैक है वो फ्रंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ये होगा 1 और 2, और वो जो डॉट जो बैक साइड पर था वो फ्रंट पर आ जाएगा। ये सिग्मा V1 हमने अप्लाई कर दिया। अब ये देख लें, अगर यहां तक हमने आना है तो इसका रिजल्ट क्या होगा। देखिए 1 लेफ्ट पर है, इधर 1 राइट पर है, 2 लेफ्ट पर है, इधर 2 राइट पर है, और फ्रंट ही है, यानी फ्रंट जिस तरह यहाँ पर भी डॉट है यहाँ पर। तो इसका मतलब इसको हमने इस प्लेन से रिफ्लेक्ट कर दिया, यहाँ पर हमने मिरर लगाया। जब इधर मिरर लगाएंगे तो ये कौन सा है, वाई जेड प्लेन है, सिग्मा V2, दिस इज सिग्मा V2। So therefore C2 and sigma V1 is equal to sigma V2। इसी तरह अगर ये दोनों करते हैं सिग्मा V1 और सिग्मा V2, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। पहले सिग्मा V1 अप्लाई करते हैं, ये है 1 और 2 और इस पर हमने डॉट लगा दिया है। सिग्मा V1 यानी फ्रेमवर्क ऑफ द मॉलिक्यूल, जब अप्लाई करेंगे तो ये सारे एटम ऐसे ही रहेंगे, सिर्फ बैक साइड और फ्रंट साइड वो एक्सचेंज हो जाएंगे। क्या हो जाएगा,
ये 1 और 2 ही रहेगा, लेकिन जिस फ्रंट साइड पर जो हमने डॉट लगाया था वो बैक साइड में चला जाएगा। और फिर क्या करना है, सिग्मा v2 अप्लाई करना है। जब सिग्मा v2 अप्लाई करेंगे तो ये यानी सिग्मा v2 ये वाला है, यहाँ से मिरर लगाएंगे, दरमियान में मिरर लगाएंगे, तो फिर क्या होगा, ये 2 जो राइट पर है वो लेफ्ट पर हो जाएगा, 2 और यहाँ पर 1, और डॉट नहीं आएंगे क्योंकि हमने यहाँ से रिफ्लेक्ट करना है, तो फ्रंट फ्रंट ही रहेगा और बैक बैक ही रहेगा, सिर्फ राइट और लेफ्ट चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पर देख ले, अगर हमने यहाँ से यहाँ तक आना है तो क्या हुआ है कि 1 जो लेफ्ट पर था इधर राइट पर है, 2 जो राइट पर था इधर लेफ्ट पर है, और दूसरा इसका फ्रंट और इसका बैक है, यानी ये जो डॉट वाला साइड था अब इसमें वो पीछे चला गया है। तो इसका मतलब इस मॉलिक्यूल को पहले ऐसे था, तो ऐसे जब रोटेट करेंगे, रोटेट होने से राइट और लेफ्ट हो जाएंगे और फ्रंट साइड बैक साइड में चला जाएगा, तो इसका मतलब ये C2 है। So sigma v1 और sigma v2, this is equal to C2. So two symmetry operations combine and it gives a third symmetry elements. इसी तरह C2 और sigma v2 को कंबाइन करेंगे तो इससे sigma v1 बन जाएगा, C2 and sigma v2, इससे हो जाएगा sigma v1, ये आप प्रूफ कर सकते हैं। तो पहला रूल क्या था कि two symmetry elements combined and it gives a third symmetry element. तो इसका मतलब कि ये जो 4 symmetry elements है वो इस फर्स्ट रूल को ये ओबे कर रहे हैं। According to rules of mathematical point group, these symmetry elements these symmetry elements obey one of the rules of the group, और वो पहला रूल क्या है कि 2 symmetry elements combines and gives the third symmetry element। तो ये एक रूल हो गया। दूसरा रूल क्या था, इसको बताना नहीं था, लिख लेते हैं। वाटर में हमारे पास सिमेट्री एलिमेंट्स है C2, सिग्मा v1, सिग्मा v2 और आइडेंटिटी। Second rule, an element combined with itself and form another elements, that is A or A, it gives B। इसी तरह B and B, it gives C, where C is also a symmetry element। इस तरह B is also a symmetry element, यानी कोई सा symmetry elements अपने आप के साथ कंबाइन होकर एक तीसरा symmetry element दे देता है। तो पहले अगर हम C2 देखते हैं, वन और ये 2 है और इस पर ये डॉट है, तो अगर हम इस पर C2 अप्लाई करते हैं, यानी क्या करना है कि C2 और C2 के साथ कंबाइन होकर इसका रिजल्ट क्या होगा, तो देखिए ये एक्सचेंज हो जाएंगे, ये 1 और ये 2 हो जाएगा और डॉट इस पर नहीं होगा, और फिर C2 अप्लाई करेंगे तो फिर वापस अपनी जगह पर आ जाएंगे, ये 2 और ये 1 और डॉट फिर वापस आ जाएंगे, यानी एक दफा रोटेट करते हैं तो डॉट पीछे चले जाएंगे, फिर रोटेट करते हैं तो डॉट वापस आ जाएंगे। अब ये दोनों देख लें, ये क्या है, ये वही है, यानी नथिंग टू डू है, इसका मतलब ये आइडेंटिटी है। So C2 and C2, this gives another symmetry element E, identity। इस तरह सिग्मा v1 और सिग्मा v1 जब ये कंबाइन होकर 2 दफा अप्लाई करते हैं तो इसके भी आइडेंटिटी ही आना है, यानी यहाँ पर सिग्मा v1 ये वाला प्लेन है, जब एक दफा रिफ्लेक्ट करेंगे तो बैक, तो ये डॉट वाला साइड बैक में हो जाएगा, यानी फ्रंट बैक पर और बैक फ्रंट पर,
और दोबारा रिफ्लेक्ट करेंगे, दोबारा अप्लाई करेंगे तो फिर वापस इनिशियल पोजीशन पर आ जाएंगे। इसी तरह सिग्मा v2 और सिग्मा v2 इससे भी आइडेंटिटी। सो every element combined with itself and gives an element identity E। तो ये सेकंड रूल है मैथमेटिक्स के लिए। इसका मतलब ये जो चार सिमेट्री एलिमेंट हैं ये इस सेकंड रूल को भी ओबे कर रहे हैं। सेकंड रूल क्या था कि every element combined with itself and gives a second symmetry element। थर्ड रूल क्या था कि every group consists of one element which commutes with all elements and leave it unchanged। That is EA और AE is equal to E। ये है। तो अब अगर C2 है और इसको E के साथ कंबाइन करते हैं, C2 क्या है, जब रोटेट करते हैं और फिर E अप्लाई करते हैं तो वो वही C2 ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये है, ये हमने इस पर C2 अप्लाई कर दिया है और फिर इस पर E अप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ऐसा ही रहेगा 2 और 1। अब यहां से यहां तक अगर आना है तो वो क्या है, वो C2 ही है, क्योंकि राइट लेफ्ट पर और लेफ्ट राइट पर और बैक साइड फ्रंट साइड और फ्रंट साइड बैक साइड तो C2 है। तो C2 और E ये C2 है, यानी C2 अप्लाई कर देते हैं और फिर इसको ऐसे ही छोड़ लेते हैं, कुछ और नहीं करते तो वो C2 ही रहेगा ना। इसी तरह सिग्मा V1 अप्लाई करते हैं और फिर टू डू नथिंग, यानी फिर छोड़ लेते हैं, कोई और अप्लाई नहीं करते तो क्या होगा, वो सिग्मा V1 ही रहेगा, क्योंकि उसको पर हम कोई और अप्लाई कर ही नहीं रहे हैं। इस तरह सिग्मा V2 है और फिर E है तो इससे भी सिग्मा V2। तो थर्ड रूल था, या थर्ड था कि एवरी ग्रुप कंसिस्ट ऑफ वन एलिमेंट, यानी इनमें से एक एलिमेंट ऐसा होगा कि वो सब के साथ कम्यूट कर जाता है और उसका रिजल्ट अनचेंज होगा, और वो क्या है, वो E है। तो अब देखिए पहले हमने ये कहा ये सिमेट्री एलिमेंट टू डू नथिंग है, यानी जाहिर में जब हम उसको डिस्कस करें जाहिर में इसका कोई फायदा नहीं है, लेकिन वो इसलिए इंट्रोड्यूस किया है कि क्योंकि फिर ये कंडीशंस ये रूल्स ओबे नहीं होना था अगर ये सिमेट्री एलिमेंट हमारे पास ना होता, तो इसलिए इसको भी शामिल किया गया है। अगर फिजिकली या रियलिटी में ये कुछ इसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि टू डू नथिंग है, लेकिन इसके बगैर हमारे पास वो रूल्स फॉलो नहीं होंगे, ओबे नहीं होंगे, तो इसलिए इसको भी एक सिमेट्री एलिमेंट्स कहा गया है। अच्छा, फोर्थ रूल, the symmetry elements of the group obeys associative law of combination, that is A, B and C और A, B and C। इससे क्या मतलब, ये पहले अगर हम C2 और सिग्मा V1 अप्लाई करते हैं और उसके बाद उसके रिजल्टेंट पर सिग्मा V2 अप्लाई करेंगे, या पहले सिग्मा V1 और सिग्मा V2 कंबाइन कर लेते हैं और फिर C2 अप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट सेम आएगा। अब इसको देखते हैं कि ये सेम रिजल्ट आते हैं या नहीं आते हैं। कि वाटर हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये 1 और 2 है और ये इस पर डॉट है। तो पहले क्या करते हैं कि C2 अप्लाई करना है। जब C2 अप्लाई करेंगे तो रोटेट हो जाएगा 1 2 पर और 2 1 पर, और फ्रंट और बैक वो भी एक्सचेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 1 और डॉट इस पर नहीं हो गया, डॉट पीछे चले गए हैं। फिर उसके बाद सिग्मा V1 अप्लाई करते हैं। सिग्मा V1 कौन सा है, वो फ्रेमवर्क ऑफ द मॉलिक्यूल बोर्ड वाला प्लेन है, यानी इस प्लेन से हमने इस प्लेन से रिफ्लेक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये 1 और 2 अपनी जगह पर रहेंगे, सिर्फ वो फ्रंट और बैक वो चेंज हो जाएंगे।
यानी डॉट उस पर आ जाएंगे, ये 1 और 2 और इस पर डॉट आ जाएंगे। फिर उसके बाद क्या करना है, सिग्मा v2 अप्लाई करना है। जब सिग्मा v2 अप्लाई करेंगे तो फ्रंट ही रहेगा, सिर्फ जो राइट है वो लेफ्ट हो जाएगा और लेफ्ट है वो राइट हो जाएगा। ये 2 और ये 1, ये हमने क्या किया, पहले C2 सिग्मा v1 और देन सिग्मा v2। अब दूसरा, पहले सिग्मा v1 और सिग्मा v2 अप्लाई करते हैं। ये 1 और 2 है, पहले क्या अप्लाई करना है, सिग्मा v1। तो सिग्मा v1 कौन सा है, फ्रेमवर्क ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी इसी प्लेन से। तो वो क्या हो जाएगा, 1 और 2 अपनी जगह पर रहेंगे, सिर्फ फ्रंट और बैक एक्सचेंज हो जाएंगे। ये 1 और ये 2, इसका फ्रंट इसका बैक और इसका बैक इसका फ्रंट, ये इस प्लेन से हमने रिफ्लेक्ट कर दिया। फिर क्या करना है, फिर सिग्मा v2 जब अप्लाई करेंगे तो ये ऐसे ही रहेगा, यानी फ्रंट ही रहेगा, बैक ही रहेगा, सिर्फ राइट और लेफ्ट एक्सचेंज हो जाएंगे। ये 1 और ये 2, ये 2 और यहाँ पर 1, यहाँ से हम इसको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इधर से YZ प्लेन। और फिर उसके बाद क्या करना है, उसके बाद फिर C2 अप्लाई करना है। तो जब C2 अप्लाई करेंगे तो ये रोटेट हो जाएगा, 2 इस साइड पर और 1 उन साइड पर, और बैक साइड वो फ्रंट पे आ जाएगा और फ्रंट साइड बैक पे चला जाएगा। ये हो जाएगा 2 और ये 1 और वो डॉट फ्रंट पर आ जाएगा। तब ये कि पहले हमने सिग्मा v1 अप्लाई कर दिया, सिग्मा v2 अप्लाई कर दिया, और उसके बाद C2 अप्लाई करेंगे। तो C2 के अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, 2 जो राइट पर है वो लेफ्ट पर और लेफ्ट पर है वो राइट पर, और फ्रंट और बैक भी चेंज हो जाएंगे। तो इसका रिजल्ट ये हो गया। अब ये दोनों सेम है, ये हमने पहले C2 अप्लाई किया था और सिग्मा v1 और देन सिग्मा v2, उससे ये रिजल्ट आ गया था। और फिर सिग्मा v1 और सिग्मा v2 और फिर C2 अप्लाई करें तो उससे भी यही रिजल्ट आ गया। सो इट मीन्स दिस फॉलोज द एसोसिएटिव लॉ, रूल्स ऑफ एसोसिएटिव लॉ। तो ये फोर्थ रूल भी ये ओबे कर रहे हैं। इस तरह फिफ्थ रूल, फिफ्थ क्या था, each element of the group has an inverse or reciprocal, और वो उसके साथ कंबाइन होकर क्या देता है, वो आइडेंटिटी, यानी A फिफ्थ का A एंड इट्स का इनवर्स -1 है, और ये दोनों कंबाइन होकर ये दे देगा आइडेंटिटी। तो इसका मतलब C2 है, अगर ये प्लस है या क्लॉकवाइज है तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा, C2 एंटी क्लॉकवाइज, और इसे क्या बनेगा, E। इस तरह सिग्मा V1 है और सिग्मा V-1, इसे आ जाएगा E। सिग्मा V1 और सिग्मा V-1 ये एक ही बात है, क्योंकि प्लेन्स तो वही, इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो है ही नहीं। या सिर्फ ये देख सकते हैं कि एक दफा मिरर यहाँ पर लगाते हैं ये 1 हो जाएगा, और फिर यहाँ पर लगाते हैं ये -1 हो जाएगा, राइट और लेफ्ट, तो उसका रिजल्ट तो सेम ही आएगा। तो अब अगर C2 अप्लाई करते हैं, पहले ये अगर देख लेते हैं, ये 1 और 2 है और इस पर ये डॉट है, तो C2 इस पर अप्लाई करते हैं क्लॉकवाइज,
क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1 और 2 और फ्रंट बैक पर चला जाएगा। और फिर उसको C2 एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देंगे तो फिर क्या हो जाएगा, वापस रोटेट कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, इनिशियल पोजीशन पर दोबारा आ जाएंगे 1 और 2। तो C2 सिमेट्री एलिमेंट्स और इसका इनवर्स, या C2 क्लॉकवाइज और C2 एंटी क्लॉकवाइज, C2 clockwise, C2 anti-clockwise, it gives E identity. So it means that these four symmetry elements of the water molecules, they follow the 5 rules of the point group. So therefore these symmetry elements combined and form a group. That group is called point group, सिमेट्री पॉइंट ग्रुप। इस तरह जितने भी हमने डिस्कस किए हैं एमोनिया के लिए NH3 में, उसमें क्या किया थे, C3 C32 और सिग्मा V1 सिग्मा V2 सिग्मा V3 और E। अब ये 6 हो गए हैं, तो ये सब यही 5 रूल्स फॉलो करेंगे। आप इस तरह ट्राई कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये 5 सिमेट्री एलिमेंट्स ये एक ग्रुप बनाएंगे, वो होगा पॉइंट ग्रुप। अब इसका नाम क्या होगा वो फिर हमने नेक्स्ट चलो डिस्कस करना है। ये ग्रुप भी फिर दो तरह के हैं, एक को एबिलियन पॉइंट ग्रुप कहते हैं और एक नॉन एबिलियन पॉइंट ग्रुप है। चलो वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेते हैं।